اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے دیے گئے خصوصی مکالمے اور گالا ڈنر میں شرکت۔ شہباز شریف نے عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس کے کامیاب انعقاد اور شاندار انتظامات پر سعودی قیادت کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ کی قیادت میں اعلیٰ سربراہی وفد پاکستان بھیجنے پر ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی، قرض بحالی پروگرام پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملک کی معیشت کو پٹری پر لانے کے لیے متحرک۔ عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس میں وزیر اعظم کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں۔ MD IMF کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات میں وزیر اعظم نے قرض بحالی پروگرام پر تبادلہ خیال کیا۔ MD IMF نے گزشتہ سال سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پر وزیر اعظم کے قائدانہ کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے MD IMF کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ شہباز شریف صدر اسلامی ترقیاتی بینک ڈاکٹر محمد سلیمان الجاسر سے بھی ملے۔ ملاقات میں پاکستان میں جاری منصوبوں کو جلد مکمل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم کی سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد آل فلی، سعودی وزیر خزانہ محمد آل جادان اور سعودی وزیر برائے صنعت بندر بن ابراہیم سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری نے وزیر اعظم کو پرائم منسٹر آف ایکشن قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کویت کے امیر مشعل الاحمد الجابر السوا سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ عالمی عدم مساوات ہے۔ اس عدم توازن کو کووڈ نے مزید اجاگر کیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی نے پاکستان کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ 2022 کے سیلاب میں پاکستان تباہ ہو گیا۔ عوام کی بحالی کے لیے اربوں روپے خرچ کرنے پڑے۔ عالمی فنڈ سے مدد مانگی تو بہت مہنگے قرضوں کی پیشکش کی گئی۔ عالمی اقتصادی فورم میں عالمی صحت سے متعلق سیشن میں اظہار خیال کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ عالمی کاربن کے اخراج میں پاکستان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ Fraction of emissions, yet we are on the list, red list of climate change, and in 2022 we experienced the worst climate change floods in Pakistan, devastating everything from hospitals, schools, lands, agriculture, everything. And we had to invest hundreds of billions of rupees to rehabilitate people. But when it came to the question of seeking funds from abroad, those were loans, expensive loans. Can a developing country afford that? وزیر خارجہ اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم مقرر کر دیے گئے ہیں، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم مقرر کیا۔ اسحاق ڈار پاکستان کے چوتھے ڈیپٹی وزیر اعظم ہیں۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو، نصرت بھٹو اور چودھری پرویز الہی ڈیپٹی وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ ملک میں بڑھتے ہوئے کرائم کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں تو DI خان سے اغوا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاکر اللہ بازیاب کرا لیے گئے۔ جج شاکر اللہ مروت کو غیر مشروط طور پر بازیاب کرایا گیا۔ سیشن جج کو بحفاظت ان کے گھر منتقل کر دیا گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے بازیابی کی تصدیق کر دی۔ کہا جج شاکر اللہ کو بازیابی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ صوبائی حکومت فورسز سے مل کر دہشت گردی سے نمٹ رہی ہے۔ صوبائی حکومت نے امن و امان کی بحالی کو ترجیح پر رکھا ہوا ہے۔ سیشن جج شاکر اللہ کو ہفتے کے روز اغوا کیا گیا تھا۔ DI خان سے اغوا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاکر اللہ بازیاب کرا لیے گئے ہیں۔ جج شاکر اللہ مروت کو غیر مشروط طور پر بازیاب کرایا گیا ہے اور ان کی بازیابی کے حوالے سے اب مبارکبادوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گندم کی خریداری نہ ہونے پر کسانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ آج پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کی کال دے دی۔ کہتے ہیں کھیتوں میں کھلے آسمان تلے پڑی گندم خراب ہو رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے گندم خریداری شروع کی، نہ ہی باردانہ فراہم کیا گیا۔ وزیر اعظم کے نوٹس کے باوجود گندم کی سرکاری خریداری نہ ہونے پر کاشتکار 3,900 روپے کی بجائے 3,000 روپے فی من گندم بیچنے پر مجبور ہیں۔ گندم کی صورتحال پر آج اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ کسانوں کو اچھی خبر سنائیں گے۔ وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کہتے ہیں کہ کسانوں کے مطالبات سامنے رکھ کر فیصلے کریں گے۔ امید ہے کسانوں کو احتجاج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
राजनपुर में गंदम की फसल पककर तेज हो गई है और कटाई भी कर ली गई है, ताहम कोई खरीदार सामने नहीं आ रहा है। किसानों की दुहाइयाँ कहते हैं कि गंदम कहाँ ले जाएं। हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदार के मराकज़ अभी तक खोले नहीं जा सके हैं। अहम खबर आपको दी जा रही है और वहाँ पर राजनपुर में इस वक्त क्या सूरत हाल है ये हम जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अता मोहम्मद से। अता, क्या सूरत हाल है? जो है राजनपुर के 100% इलाकों की गंदम की कटाई का अमल जो है मुकम्मल हो गया है, लेकिन किसानों से गंदम खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। हुकूमत की जानब से सरकारी जो है निर्कदमा है 3900 का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस पर कहीं पर भी अमल दरामद होता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। जबकि दूसरी यहाँ पर राजनपुर में जो किसान है वो जो है सेठों मुनाफाखोरों के हाथों जो है लुटने पर जो है मजबूर हो गए हैं। जबकि दूसरी यहाँ पर कुछ किसान मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे जो है वो बात करते हैं। सारे इलाके के अंदर गंदम की कटाई मुकम्मल थी गई है, खरीदार कोई नहीं लगता पाया। 3900 हुकूमत का रेट है, 2800 2700 भी खरीद नहीं देना पाया। वाला दूजा उधार वाले जरा गंदम चाहती खड़े, खाद वगैरह वो भी बड़े परेशान की खड़े। 15,000 की बोरी मिली है DAP, 5200 की मिली है यूरिया की, लेकिन खरीदार कोई नहीं लगता पाया। बड़ी परेशानी है, 3900 तो कोई खरीद ही नहीं करना पाया, हाली तक फूड ही नहीं खुले। हाँ जी बिल्कुल, जो है इनके यहाँ से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानब से अभी तक जो है गंदम खरीदारी के मरकज़ जो है वो नहीं खोले गए, बारदाना की तकसीम जो है वो नहीं की गई, जबकि महंगी अद्वियात जो है इस्तेमाल करके गंदम काश्त की गई है, लेकिन उसके बावजूद ना हुकूमत खरीदने को तैयार है और ना ही व्यापारी हुकूमत की जानब से दी गई जो कीमतें हैं उस पर खरीदने को तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। और अभी मौसम का हवाला आपको बताएं तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए तेज़ हवाओं के साथ बारिश। शेखुपुरा, डस्का, फिरोजवाला, फूलनगर में बारिश से जलथल एक हो गया। लाहौर, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेश गोई। इस्लामाबाद, पेशावर, दीर, चतराल, सवात, कश्मीर में आज तेज़ बारिश का इम्कान है। कराची, कोयटा समेत बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश रहने की तवक्को है। लाहौर में रात से बादलों के डेरे हैं, ठंडी ठार हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो चुका है। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब में आज बारिशों की पेश गोई। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ जहां से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, पंजाब भर में जो है रात भर से ठंडी ठंडी हवाओं ने मौसम जो है काफ़ी तब्दील कर दिया है। मौसम जो है रात से जो है काफ़ी खुशगवार रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम सुबह सवेरे के मौसम के हवाले से बात करें, पंजाब भर के बेशतर इलाकों में सुबह सवेरे से काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से जो है मौसम मजीद खुशगवार हो गया है। अगर हम सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के हवाले से बात करें, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में जो है आज सुबह सवेरे से जो है काले बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया है। अगर हम बात करें दर्जा हरारत के हवाले से, तो इस वक्त शहर में जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवाएं जो है वो 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जो है 70% तक जो है बारिशों के इम्कानात है, जिसकी वजह से मौसम जो है आज काफ़ी खुशगवार रहने का इम्कान है। खुशगवार मौसम से लुत्फ़ उठाने के लिए शहरी जो है पार्कों में निकले हुए हम देख रहे हैं कि सड़कों पर जो है शहरी वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने फैमिलीज़ के हमरा, ताकि खुशगवार मौसम से जो है लुत्फ़ उठाया जा सके। इस तरह जो है तभी माहिरीन का कहना है कि आप जो है बारिश में बाहर निकलने से परहेज़ करें, क्योंकि बारिश की वजह से जो है आप बीमार सकते हैं। आप बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे जो है काफ़ी जल्दी बीमार पड़ सकते हैं और अस्पतालों में जो बच्चों की बीमारी का रेशा है वो काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। जी साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि सियासी मामलात को दुरुस्त करने तक मसाइल हल नहीं हो सकते। लाहौर में आसपा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा उस मुल्क की मैशत कमज़ोर होगी। जिस मुल्क में अदल का निज़ाम नहीं होगा वहाँ तरक्की नहीं आ सकती। निज़ाम अदल दुरुस्त होने तक मुल्क आगे नहीं चल सकता। वफाकी हुकूमत की मजमूई आमदन कर्ज का सूद भी पूरा नहीं कर सकती। डॉलर की कीमत में कमी किसी सूरत मुमकिन नहीं होगी। हुक्मरान बजट में अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। IMF के पास जाने का मतलब है हम नाकाम हो गए। बिजली महंगी खरीद कर आप किसी भी सेक्टर में काम नहीं कर सकते। इस बात का इतराफ है कि हम नाकाम हो गए, और हम न सिर्फ नाकाम हुए बल्कि हम नालायक भी हैं। जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा, सियासी निफाक होगा, वहां की उसकी मईशत भी कमजोर होगी। आज जो वफाकी हुकूमत की कुल आमदन है वो आपका सूद भी पूरा अदा नहीं कर सकती। डॉलर की कीमत में कमी नहीं होगी, क्योंकि अब हुकूमत कम्पीट कर रही है मार्केट में जाकर डॉलर खरीदने में, उसने अपनी पेमेंट्स करनी है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा।
वज़ीर आला KPK का हुलिया बदमाशों और उनकी ज़ुबान गुंडों जैसी है। अली अमीन गंडापुर ने कल भी मरियम नवाज से मुतालिक घटिया गुफ्तगू की। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी को सियासी मुखालिफिन को मुँह तोड़ जवाब उन्होंने दिया। कहा कि एक सूबे का वज़ीर आला विफाक पर चढ़ाई की धमकियाँ दे रहा है। PTI फौज से NRO चाहती है जो नहीं मिलना। ये शायद 9 मई के बाद रोना धोना भूल गए हैं। मरियम नवाज के खिलाफ ज़ूम आईने जुमले बोलने से ये अपनी तरबियत का मुजाहिरा करते हैं। चीफ मिनिस्टर मिला है जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी जबान भी बदमाशों जैसी है। जिस तरह की जबान वो खवातीन के बारे में इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिकली मरियम नवाज साहबा के खिलाफ वो इस्तेमाल करें, बिकॉज वो कर नहीं सकते, उनके पास मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है। जबान दराजी का एक कल्चर है हमारे मुखालफिन का, अनफॉर्चुनेटली उसमें तब्दीली नहीं आ रही। ये बदतमीजी से मरियम नवाज साहबा को कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। KPK के सूबे के चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी वो हम चढ़ाई कर देंगे इस्लामाबाद के ऊपर। अभी 9 मई जो है वो अभी आने वाला है, दोबारा एक बरसी होने वाली है, बिकॉज इससे ज्यादा खौफनाक तकलीफ दे दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना कभी होगा ना कभी हो सकता है। बदतमीजी करने से, मरियम नवाज साहबा के ऊपर जो है वो जुबानी जुमले बोलने से अली अमीन गंडापुर साहब आपकी तरबियत पे सवाल उठ रहा है, और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा के मुकद्दर के ऊपर जो है वो रोना आ रहा है। इनका तो हाल वो ये है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अगर आपको कोई सूबाई हुकूमत काम करती हुई नजर आ रही है तो वो पंजाब की मरियम नवाज साहबा की हुकूमत है। वो अभी उनको आए हुए 2 महीने हुए हैं, और उस 2 महीने के अंदर 64 लाख खानदानों में निगहबान रमजान पैकेज को पहुंचाना हो, या वो एयर एम्बुलेंस जो 2004 से चली हुई है, इंशाअल्लाह ताला जून में पंजाब के अंदर आ रही है, और वो एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काम करेगी। दस्तक प्रोग्राम है जो बहुत जल्द इंशाल्लाह उसको चीफ मिनिस्टर साहब लॉन्च करेंगी। पंजाब की हुकूमत जो है वो घर के ऊपर ये तमाम 10 फैसिलिटीज जो है ये डिलीवर करेंगी।